بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کی نگاہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پہ تھی۔ جب پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا، مبلغ اعظم کے سر پہ کلا، پیچھے شاگردوں کے سروں پہ کتابوں کے بکسے، علی کا نوکر جلال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا جیسے دربار میں مختار داخل ہوا تھا، اس جلال کے ساتھ مبلغ اعظم کے داخل ہو رہا تھا۔ سارے مولوی خوشی میں اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ مرزا ناصر نے اپنی کرسی چھوڑی، قبلہ اسماعیل کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ لگا، اسماعیل آپ کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ فرمایا تو نے چیلنج کیا تھا، اس نے تجھے غلط فہمی ہو گئی، میں نے مسلمانوں کو کیا تھا، مومنوں کو نہیں کیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ علی کے نوکروں کا۔ میں یہ بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں، آج پورے ملک میں شور برپا ہے، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، اور ختم نبوت کے ٹھیکیدار وہ بنے ہوئے ہیں جن کا نبی پہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں۔ میں پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے، میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرنے لگا، حقیقی شیعہ نمائندگی کرنے لگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک کے ختم نبوت پہ اصل حصہ کس کا؟ تحریک ختم نبوت کے لیے قربانیاں کس نے دی؟ ختم نبوت پہ اگر کوئی بات کر سکتا ہے، میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے مولویوں سے لے کے علماء بورڈ تک بیٹھے ہوئے مولویوں سے کہہ رہا ہوں، قادیانیوں کے مرزائیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا۔ ہمیں گھر میں بیٹھ کے کافر کہہ لیا کرو، لیکن جب دشمن کے مقابلے پہ جانا اکیلے نہ جانا، کیونکہ اگر تم کہے تو تم ختم نبوت پہ بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہو کہ نبی نے حدیث کہی تھی اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بولے میری قوم کا نوجوان میرے ساتھ بولے۔ تم نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھی کہ حدیث ہے رسول کی کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو فلاں ہوتے۔ ختم نبوت پہ بات کیسے کرو گے؟ مرزائی تمہارے سامنے تمہاری کتابیں رکھ دے گا، وہ کہے گا تم کیسے بات کرتے ہو، تمہاری کتابوں میں نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ نبوت آج بھی علی ولی اللہ کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اور میری قوم کے حافظ اتنے کمزور نہیں ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میری قوم کے نوجوانوں تک یہ فکر پہنچانا چاہتا ہوں، بزرگوں کے ذہنوں میں یہ تصویر پہلے سے موجود ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور پہ لیاقت بھائی مرزا ناصر نے، اس دور کے مرزائیوں کے رہنما نے اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ہمارے گھر نہ جلاؤ، ہماری بستیوں کو آگ نہ لگاؤ، ہمارے ساتھ بحث کرو، ہم تمہیں کتابوں سے ثابت کریں گے تمہارے نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے۔ تمہارے پورے ملک میں ایسے خاموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی۔ میں شیعہ قوم کی تاریخ سنانے لگا ہوں، لاہور میں کھڑا ہو کے سارے مولوی اکٹھے ہو کے اسی شہر لاہور میں آغا شورش کاشمیری کے پاس آئے، اس دور کے اہل سنت کا جید نام تھا۔ انہوں نے آگے کہا آغا شورش کاشمیری، مرزا ناصر روزانہ اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا چیلنج کر رہا ہے تو پھر آپ مولویاں کریں مناظرہ؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم قاری ہیں، حافظ ہیں، بات مناظرے کی ہے، شیعوں کا اسماعیل بلاؤ۔ جوان سر اٹھائے، میں مذہب کی تاریخ سناؤں تمہیں، میں بتاؤں ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہے، بات مناظرے کی ہے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو بلانا پڑے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ آغا شورش کاشمیری نے فون اٹھایا، درس آل محمد میں فون ڈائل ہوا۔ توجہ میری طرف کرنا، ذہن میری طرف رکھنا، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا۔ مولوی جلسوں پہ شیعہ کافر کا نعرہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے لگواتے تھے۔ جب آغا شورش کاشمیری نے فون کیا، دوسری طرف سے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے فون اٹھایا۔ اس وقت سرکار میں آغا شورش کاشمیری بول رہا ہوں، فرمایا جی بولیے۔ مولانا اسماعیل کیا آپ اخبارات نہیں پڑھتے؟ فرمایا روزانہ پڑھتا ہوں۔ مرزا ناصر کا چیلنج نہیں پڑھ رہے؟ کہا پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا اسماعیل مسکرا کے ابھی تک اس نے مجھے نہیں کیا۔ رات کے اس پہر میں جو عقیدہ سننا چاہتے اس نے ابھی تک مجھے چیلنج نہیں کیا۔
जब मुझे चैलेंज करेगा मैं किसी से पूछूंगा नहीं। उसने कहा जी ये सारे उलमा इकराम इकट्ठे होके मेरे पास आए हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल साहब की इल्मी खिदमात से फायदा उठाया जाए। आखिर मौलाना इस्माइल की बड़ी इल्मी खिदमात है। अब मैं जुमला भी पढ़ूंगा और चेहरे पढ़ूंगा कि ये जुमला किस किस चेहरे पे असर किया है और किस किस सर के ऊपर से गुजर गया। जब उसने कहा ना आगा शोरश काश्मीरी ने, मैंने जो लफ्ज पहले का वो बात ज़हन में रखिएगा, शिया काफर का नारा अरूज पे था। उसने कहा ये सारे मौलवी कह रहे हैं कि मौलाना इस्माइल की इल्मी खिदमात हासिल करनी पड़ेगी। किबला इस्माइल ने कहका लगाया। शोरश काश्मीरी ने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? किबला ने कहा पहले इन उलमा इकराम से एक बात पे फतवा तो लेके दे, इनसे इतना पूछ इस्लाम ने काफर से मदद मांगना जायज है? हाय हाय, क्या मजहब इस्लाम ने काफर से मदद मांगना जायज है? आगा शोरश काश्मीरी मुस्कुराए, मुस्कुरा के लगे मौलाना इस्माइल ये है हमारे घर की लड़ाइयां, फिर कभी हम बैठेंगे ये भाई भाई की लड़ाई है हम तय कर लेंगे। लेकिन अब ये इकट्ठे होके आप मुझे बताएं इनको क्या जवाब दूं? एक एक लफ्ज सुनने वाला, अब इनको क्या जवाब दो? किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने कहा आगा शोरश काश्मीरी मैं आपके दिल की अथा गहराइयों से इज्जत करता हूं, मैं आपको कद्र की निगाह से देखता हूं, लेकिन आगा शोरश काश्मीरी जो तेरे पास बैठे ना आप इन्हें नहीं जानते, मैं इनके दरमियान रह के आया हूं, मैं इनकी नस्लें भी जानता हूं, मैं इनके शजरे भी जानता हूं, मैं इनके किरदार भी जानता हूं। मुझे पता है ये रात की तरीकी में मिन्नतें करते हैं, दिन की रोशनी में मुकर जाते हैं। हाय हाय हाय, ये रात की तरीकी में मिन्नतें करते हैं, दिन की रोशनी में मुकर जाते हैं। आगा शोरश काश्मीरी ने कहा इसका मतलब मौलाना इस्माइल आप इनकार कर रहे हैं, आप मनाजरे के लिए नहीं आ रहे? किबला मुबल्लिग आज़म ने कहा मैं आंखों के बल चल के आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगा शोरश काश्मीरी ने कहा वो शर्त क्या है? मुबल्लिग आज़म ने कहा इन सारे मौलवियों को दरसे आले मोहम्मद के दरवाजे पे भेज, कम से कम मेरे शहर वाले तो देखे या अली मदद के सारे मुनकर चल के आए। जिसको अली की मदद का इनकार था, ये सारे इकट्ठे हो चल के आए। तारीख सुनाओ तुम्हें खत्म नबूवत की, ये तारीख अपने ज़हनों में महफूज रखो ताकि आज के दौर में तुम जवाब दे सको कि खत्म नबूवत में अगर कोई कुर्बानी है तो हमारी है। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद के क्या कहने उन उलमा इकराम के जिनकी कब्रें हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी हैं, जिनका पेशा शिया नहीं, जिनका मजहब शिया था, जिन्होंने नगर नगर अली वलीउल्लाह फैलाया, छत छत पे अब्बास का अलम लहरवाया, क्रिया क्रिया नगर नगर जाके ज़हरा का हक मनवाया। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद के दरवाजे पे किबला मुबल्लिग आज़म को साथ लिया। रात के इस पहर में इतना थका हुआ मजमा अगर यूं अकीदा सुनेगा तो फिर आपकी इस अकीदे की बुलंदी को देख के मैं जुमला कहने लगा हूं। सारे मौलवी इकट्ठे होकर किबला मुबल्लिग आज़म इस्माइल को साथ लेकर चल पड़े। पार्लियामेंट हाउस में मनाजरा था, जजेस, वुकला, दानश्वर, मिनिस्टर ये सारे के सारे बैठे इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे मौलवी सामने कुर्सियों में बैठे हुए थे। मैं घड़े में मुंह दे के नहीं, किसी देहात में बात नहीं कर रहा, लाहौर शहर के मरकज में लाउड स्पीकर पे अपनी इतनी कौम को गवाह बना के वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अपने लफ्ज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। जहां तक मैं लफ्ज पहुंचाना चाहता हूं मुझे यकीन है ये लफ्ज वहां तक पहुंचेंगी। जिन कानों की समातों तक मैं टकराना चाहता हूं उन समातों तक टकराएंगे भी। जब मुबल्लिग आज़म को साथ लेके गए उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मिर्जा नासिर आगे एक टेबल पे बड़ी बड़ी किताबें रख के मिर्जा नासिर बैठा मौलवियों के चेहरे देख रहा था और उनसे कह रहा उठते क्यों नहीं, मुनाजरा क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते। सारे मौलवी कह रहे हमें किसी का इंतजार है, कोई आ रहा है। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पे जमी हुई थी। शायद बुजुर्गों के ज़हनों में वो तस्वीर आज भी मौजूद हो, वो मेरी हाथ तायद के लिए उठाएंगे। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पे थी। जब पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा खुला मुबल्लिग आज़म के सर पे कुल्ला, पीछे शागिर्दों के सरों पे किताबों के बक्से। अली का नौकर इस जलाल से पार्लियामेंट हाउस में आया जैसे दरबार में मुख्तार दाखिल हुआ था। इस जलाल के साथ मुबल्लिग आज़म के दाखिल हो रहा था। सारे मौलवी खुशी में उठ के खड़े हुए। मिर्जा नासिर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, किबला इस्माइल के सीने पे हाथ रखा। हाथ लगा, इस्माइल आप क्यों आ गए हैं, आप क्यों आ गए हैं। फरमाया तूने चैलेंज किया था, उसने तुझे गलत फहमी हो गई। मैंने मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं किया था। सारे बोलो मिलके बोलो हैदर 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 हैदर
चैलेंज मुसलमानों को था, मोमिनों को नहीं था। अलीयुन वलीउल्लाह वालों को चैलेंज नहीं होता। दुश्मन बाहर से आए अंदर से आए, हम तैयार हैं। अलीयुन वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं। शिया मरता मर जाए, अलीयुन वलीउल्लाह पे समझौता ना करे। दुख होता है, तकलीफ होती है, पैदा शिया के घर में हो, कान में अजान अलीयुन वलीउल्लाह की दी जाए, मां बचपन से गोद में लेके मदरसों में आती रही हो, और वो हाथ में तौसील मसाइल उठा के हमसे पूछ रहा है कि इसमें अलीयुन वलीउल्लाह कहां लिखा है। डूब के मर, तौसील मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं है। अली हकीकत काहिरा का नाम। मरता मर सकता है शिया, अलीयुन वलीउल्लाह पे समझौता नहीं कर सकता। मेरी ताईद आप करेंगे तो मैं जुमला अदा करूंगा। अलीयुन वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं, अज़ादारी हुसैन पे कोई समझौता नहीं, मातम शबीर पे कोई समझौता नहीं, हुर्मत सादात पे कोई समझौता नहीं। वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपना तशख्खुस छोड़ देती। अलीयुन वलीउल्लाह तुम्हारी पहचान है। पीछे नजर दौड़ा के देखो कि हमारे बुजुर्गों ने विलायत अली को बचाने के लिए कीमतें क्या क्या दी। लियाकत भाई, मुझे जुमला किबला मुबल्लिग आज़म का अगला जुमला में मुझे अभी याद है, मैं किबला मुबल्लिग आज़म का लोधरा में मुनाजरा, मुनाजरे का मौजूद जनाज़े रसूल हक के बतूल। सरना हलाना, जुबान से बात करें। जनाज़े रसूल हक के बतूल, रसूल का जनाजा किसने पढ़ा, किसने छोड़ा, बीबी का हक किसने नहीं दिया। इन दो मौजूआत पे मुनाजरा था। किबला मुबल्लिग आज़म मौला इस्माइल मुनाजरा कर रहे थे, सामने मौलवी बदल बदल के आते रहे। एक मौलवी थक जाए दूसरा आ जाए, वो थक जाए तीसरा आ जाए। इधर अकेले मौला इस्माइल बैठे, किताबों का ढेर सामने रखा। लुत्फ लेने वाली बात है, सामने किताबों का ढेर है। अगर शाम के वक्त एक मौलवी सामने आया, उसने कहा मौला इस्माइल किताबें बंद, बहस नहीं करनी, सवाल का जवाब, मुनाजरा खत्म। इल्म मुनाजरा का असूल है कि अगर फरीक जवाब देने में ताखीर कर दे, इसे भी शिकस्त तस्लीम किया जाए। और अकीदा आपने दूसरे की किताब से साबित करना। उसे कहा मौलवी इस्माइल सिर्फ सवाल का जवाब दे, तेरा मौजू क्या है मुनाजरे का। मौला इस्माइल ने कहा जनाजा रसूल हक के बतूल। उसे कहा खत्म हो गई बहस, मुनाजरा ही खत्म हो गया, मुनाजरे का मौजू ही ठीक नहीं। किबला ने कहा मुनाजरे का मौजू क्यों ठीक नहीं। उसे कहा मुझे सिर्फ इतना बता, तुम शिया नबी को जिंदा समझते हो। मुबल्लिग आज़म ने कहा बेशक। उसे कहा हाजिर समझते हो, बेशक हाजिर। नाजर समझते हो। मौलवी इस्माइल ने कहा तू बात आगे कर चलना लग जाता। उसे कहा नबी जिंदा है या नहीं है। मौलवी इस्माइल ने कहा बेशक जिंदा है। उसे कहा अगर नबी जिंदा है फिर जिंदा का जनाजा कैसा। बात तो बड़ी वजनी थी। उसे कहा अगर नबी जिंदा है फिर जिंदा का जनाजा कैसा। जिंदा का ना विरसा तकसीम होता है, फिर विरासत में लड़ाई क्यों कि बेटी का हक था या नहीं था। या तो नबी को जिंदा ना मानो, लिखोगे नबी मुर्दा है, मैं अभी तेरे साथ बहस करता हूं कि नबी मुर्दा है, बात कर लेते हैं कि जनाजा किसने नहीं पढ़ा। नबी मुर्दा है, बात कर लेते हैं कि विरसा किसने नहीं दिया। लेकिन ये क्या बात हुई, दो दो अकीदे क्यों रख रहे हो। नबी जिंदा भी है, जनाजे पे बहस, नबी जिंदा भी है, विरासत भी बहस। खुदा की कसम ये सवाल मौला इस्माइल पे हुआ और जवाब हम तक आया। मुबल्लिग आज़म मौला इस्माइल पे सवाल हुआ, पूरा हाल पूरा सामने से मजमा खुश हो गया, भाई मौलवी बाजी ले गया। अब इसके बाद मौलवी इस्माइल के पास गुंजाइश छोड़ी नहीं, या इस्माइल मुर्दा लिखेगा या मुनाजरे से भागेगा। इतना कहना था, मौला इस्माइल ने किताबें बंद करनी शुरू कर दी। शगीर से कहा उठा भाई किताबें, मुनाजरा ही खत्म हो गया। जब शगीर तो किताबें उठाने लगा, मौलवी दूसरा जल्दी से उठ के अपनी कुर्सी से माइक पे आकर ना 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 इस्माइल ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐलान करके जा तो मुनाजरा हार के जा रहा है, मुझे भी पता चले मैं इस्माइल को हरा के जा रहा हूं। इतना कहना था, मुबल्लिग आज़म माइक पे, और उसने कहा तूने तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया, बात तय कर दी है तूने कि जिंदा का जनाजा नहीं होता, जिंदा का विरसा नहीं होता। ये कह के इस्माइल ने गर्दन से पकड़ के माइक के सामने लाए, लाका एक ऐलान तू भी करके जा, जिंदा के खलीफे भी कोई नहीं होता। बात फिर पूरी करके
ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس علی ولی اللہ